الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآلہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں. جی جوہر، افنان، وسیم، علی عباس آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو السلام علیکم. وعلیکم السلام. نشاط فاطمہ، فرحدیبہ میم، کنچا فاطمہ، کسا، سید الخانی، نشاط فاطمہ، صدف فاطمہ، شازیہ، شہلا، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب میزان میں فعل امر کے بارے میں. فعل امر معلوم. فعل امر معلوم بتایا تھا کہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے امر پہ لام اور ایک ہوتا ہے امر پہ صیغہ. دونوں ہی مضارع معلوم سے بنتے ہیں. مضارع معلوم. کیسے بنتے ہیں مضارع معلوم سے؟ کہا کہ یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک امر پہ لام ایک امر پہ صیغہ. امر پہ لام غائب کے 6 صیغے اور 2 متکلم کے صیغوں سے بنتا ہے. طریقہ کیا ہے جی؟ طریقہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ینصرو، ارے نہیں، ینصرو ایک لام امر مقصور شروع میں لائیں گے اور آخر کو جی، جزم دے دیں. آخر کو جزم دیں گے. جزم کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کہ جہاں جہاں ضمہ ہے وہاں ساکن کر دیں گے اگر حرف علت نہیں ہے، جی اور اگر حرف علت ہے تو خود حرف علت مل جائے گا. جیسے ید واو گر گئے، یہاں پہ حرف علت خود گر گر جائے. گئے. جی ٹھیک ہے، حرف علت خود گر جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ امر پہ لام تھا. امر پہ لام 2 اسٹیپ میں بن جاتا ہے. لام امر مقصور شروع میں لائیں گے مضارع معلوم کے اور آخر کو جزم. غائب کے 6 صیغے 2 متکلم کے صیغوں سے. لیکن امر حاضر معلوم جو ہوتا ہے اس کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے. کیا ہے؟ اسے امر پہ صیغہ بھی کہتے ہیں. اس میں یا تو 2 اسٹیپ اٹھانے ہیں 4 آپ ٹھیک ہے. اگر پہلے کیا علامت ہے مضارع تے کو گرا دیں گے جی، علامت جی مضارع اے کو تے کو گرا گرا دیں دیں گے. گے. ٹھیک ہے، بعد والا پھر اس کے حرف. بعد اگر فاؤل فعل ساکن ہے جیسا کہ یہاں پہ فاؤل فعل ساکن ہے تو ایک حمزہ شروع میں لے آئیں گے اور اس حمزے کو حرکت عین الفعل کے مطابق دیں گے. اگر عین الفعل پہ ضمہ ہے تو حمزے کو ضمہ. ضمہ دیں گے. اگر عین الفعل پہ فتحہ یا کسرہ ہوتا تو کسرہ. کسرہ دیں گے. تفتح. تفتحو، تفتحو تے گرایا فاؤل فعل ساکن ہے، حمزہ افتح. لے آئے، حمزہ لے آئے جی. عین الفعل پہ فتحہ ہے کسرہ دیں گے حمزہ. اگر چاہے فتحہ ہو تب بھی کسرہ دیں گے، چاہے کسرہ ہوگا. تضرب. تے گرائی فاؤل فعل ساکن ہے جی جی، وزر. حمزہ لے آئے. عین الفعل پہ کسرہ ہے، حمزے کو کسرہ. چاہے عین الفعل پہ فتحہ ہو یا چاہے عین کسرہ. الفعل پہ کسرہ ہو، حمزے کو کسرہ دیں گے. کسرہ تو ہی کیا دیں. پہلا کیا کرنا ہے؟ مضارع حاضر کے صیغے سے علامت مضارع تے کو گرا دینا ہے. اس کے بعد اگر فاؤل فعل ساکن ہے تو حمزہ لانا ہے. دو قدم. پہلا قدم علامت مضارع تے گرانی ہے. دوسرا قدم فاؤل فعل اگر ساکن ہے تو حمزہ لانا ہے. تیسرا قدم عین الفعل کی حرکت دیکھ کے حمزے کو حرکت دینی ہے. عین الفعل پہ ضمہ تو حمزے کو ضمہ، عین الفعل پہ فتحہ ہو چاہے کسرہ حمزے کو کسرہ. 3 قدم. چوتھا قدم آخر کو جزم دے دیں گے. آخر کو جزم. انصر افتح اضرب. ان 3 مثالوں سے کیا نتیجہ نکلا؟ یہ نتیجہ نکلا کہ فعل ثلاثی مجرد میں امر حاضر میں حمزے پر فتحہ نہیں آتا. حمزے پر پتہ نہیں. کہیں ہے حمزے امر پہ فتحہ؟ نہیں. ثلاثی مجرد میں، ثلاثی مجرد میں جو حمزہ آتا ہے امر حاضر میں وہ حمزے پر فتحہ نہیں آتا کیونکہ بھائی عین الفعل پہ چاہے فتحہ ہو چاہے کسرہ حمزے کو کسرہ ہی دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک طریقہ یہ کہ کیا امر مضارع حاضر کے صیغے سے علامت مضارع تے کو گرائیں گے. فاؤل فعل ساکن ہے تو حمزہ لائیں گے، حمزے کو حرکت عین الفعل کے مطابق دیں گے اور آخر کو جزم دیں گے. 4 قدم میں ہم بن جاتا ہے.
आखिर को जज्म देने का मतलब तो आपको पता ही है कि अगर हरफ इल्लत नहीं है तो हम जहाँ ज़म्मा है साकिन कर देंगे, और अगर हरफ इल्लत है तो हरफ इल्लत ही गिर जाएगा। और जहाँ नून और जहाँ नून एराबी और नून एराबी तो गिर ही जाएगा, ये होता है जज्म। लेकिन अगर फाउल फेल, वो क्या कहते हैं, मुजारे हाजिर, मुजारे बोलिए हाजिर ये था कि अलामत 4 कदम का जब अलामत मुजारे गिराए फाउल फेल साकिन हो। लेकिन अगर फाउल फेल अलामत मुजारे गिराने के बाद फाउल फेल साकिन ना हो, फाउल फेल साकिन हो रही है, हर जैसे तो हमजा लाने की जरूरत नहीं है, बस 2 ही कदम उठाने हैं, अलामत मुजारे ते गिरा दीजिए और आखिर को और आखिर को जज्म। समझ में आया? जी वक़ा यक़ी तक़ी, अब मुज़ारे हाजिर बनेगा तक़ी। तक़ी, ठीक है। अलामत मुज़ारे गिरा दी ते जी, तो फिर साकिन नहीं है, हमजा लाने की जरूरत नहीं है, जज्म दे देंगे। जज्म का मतलब यह है कि अगर हरफ इल्लत है तो हरफ इल्लत ही गिरा देंगे। यहाँ पे हरफ इल्लत है नहीं जी क्या बचा? क़े। अगर कहीं पे बोले कोई क़े क्या है तो ये मसलो तैयार है कि क़े तो फेल तो कभी एक हरफ ही नहीं होता, ये कहाँ से फेल आ गया? क़े है, ये इसमें था वक़ाया यौक़ियो तौक़ियो था, ये तौक़ियो वाओ एक कायदे के मुताबिक फाउल फेल पहले गिर चुका था, तक़ी बचा था, ते गिराने के बाद अमर हाजिर बनाया और आखिर में जज्म दे तो क़े बचता है। क़े तू बच, वफ़ा यफ़ी, वफ़ा यफ़ी, क़फ़ी तू वफ़ा कर, नहीं कफी वो तू वफा करता है करेगा, ते गिराइए और आखिर को जज्म दिया, यहाँ गिर गई तो फे, वफा यफी से फे, तू फे का मतलब क्या हुआ? तू वफा कर, तू एक मार वफा कर, तू एक मार बच। जी समझ में आया? जी। अब अगर आपसे कोई वजन तोलने का तरीका सिखाया तो मैंने कैसे फे एंड लाम को तरतीब से हुरूफ असली की जगह रख देते हैं, मिसाल के तौर पर ना सारा तो फे की जगह फे एंड लाम तरतीब से रख देंगे, जो हरकत हो दे देंगे। ऐसे तो था वजन तोलने का तरीका। जी इसका वजन कैसे तोलेंगे, क्या कहेंगे? किस आपसे पूछे फे किस वजन पे है, फे किस वजन पे है? फे एन के वजन पे है, एन के वजन पे नहीं, एन ए के वजन पे है। क्यों? क्योंकि फाउल फेल तो हस्फ हो चुका है, लाम फेल वाव हस्फ हो गया, फिर एन लामी तो रखते तरतीब से, तो इसकी जगह एन फेल रखिए ना, ये एन फेल फा हस्फ है, यहाँ हस्फ है तो यहाँ से भी हस्फ कर दीजिए, तो हो जाएगा वफा यफी क़े बरवज़्न ए, वफा यफी फे बरवज़्न ए। समझ में आया? और अगर आपसे पूछे वफा यफी या वफा यक़ी, वफा यक़ी इसका वज़न तोलो, यक़ीन तोलो, या फाउल फेल नहीं दिख रहा, वाव फाउल फेल तो हस्फ है ना, तो ये ऐन फेल है या लाम फेल है और या अलामत मुज़ारे है, तो किस वज़न पे हुआ? या इलो के वज़न पे हुआ ये, क्योंकि वज़न तोलते टाइम फेल लाम को तरतीब से रखता है। अगर असली फाउल फेल हस्फ है तो यहाँ से हस्फ हो जाएगा, ठीक है जी। बहरहाल मुदा अम्र हाजिर की अम्र की बात चल रही थी, ये बात की बात इतना याद रखिए कि अम्र हाजिर बनाने के लिए मुदारे हाजिर मालूम से बनता है। कैसे बनता है? मुदारे हाजिर से अलामत मुदारे ते गिराएंगे एक कदम, दूसरा कदम फाउल फेल साकिन है तो हमजा लाएंगे 2 कदम, तीसरा कदम ऐन फेल को देखेंगे, ऐन फेल पे जम्मा है तो हमजे को जम्मा दे देंगे, ऐन फेल पे फतहा है कसरा है तो हमजे को कसरा दे देंगे, 3 कदम, चौथा कदम आखिर को जज्म दे देंगे। लेकिन अगर अलामत मुदारे ते गिराने के बाद फाउल फेल साकिन ना हो तो फिर हमजे की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पर अलामत मुदारे गिराने के बाद फाउल फेल साकिन था, ते गिराने के बाद फाउल फेल साकिन। अभी बताओ आप आखिर को जज्म दे दें तो कैसे तलफ्फुज होता है?
कैसे तलफ़ुज़ होता है ये? क्योंकि जी अरबी में साकिन से इब्तिदा नहीं हो सकती, साकिन और तजदीद से, लिहाजा इसका तलफ़ुज़ करने के लिए मजबूरन हमें हमजा लाना जोर पड़ता रस्म है। लगाना पड़ता है। यही वजह है, जी यही वजह है कि जब ये मजबूरी के तहत लाया गया है ना, जी, मजबूरी खत्म हो जाए तो फिर पढ़ा नहीं जाता। वहीं से वहीं जी। वंसुर अब पढ़ा नहीं जाएगा ये? नहीं अब नहीं पढ़ा नहीं, जाएगा ये, क्यों? लिखा भले जाएगा, फिर बता सकें क्या है। वंसुर, वंसुर, वन फंसुर, फंसुर, क्यों नहीं पढ़ा? अब क्यों नहीं पढ़ा गया हमसा? क्योंकि क्योंकि अब मजबूरी मजबूरी खत्म हो नहीं है, क्योंकि इब्तिदा वाव से हो रही है जो कि हरकत है। वंसुर, फंसुर, ठीक है। अब हमजा नहीं, जी इसीलिए हमजा वस्ल को हमजा वस्ल कहा जाता है कि अगर कोई इब्तिदा में आता है तो पढ़ा जाता है, लेकिन लेकिन बीच में बीच आए में तो आ फिर जाए नहीं तो पढ़ा नहीं जाता। पढ़ा जाता। वंसुरुल इस्लाम जी, जी ठीक है। लेकिन अगर फाउल फेल गिराने के बाद अलामत मुदर ते गिराने के बाद फाउल फेल साकिन ना हो, हरकत हो, तो मजबूरी तो है ही नहीं जो हमजा लाए, लिहाजा ऐसे आखिर को जस्म दे देंगे। तो मेन चीज है दो, अलामत मुदारे गिराना है और आखिर को जस्म देना है। मेन चीज है तो दो, अलामत मुदारे को गिराना है और आखिर को देना है जस्म। जज्म। लेकिन अगर फाउल, अब मजबूरी आ रही है कहीं, मतलब फाउल फेल साकिन है, तो उस मजबूरी के तहत दो कदम और उठाने पड़ जाएंगे। हमजा लाएंगे और हमजे को हरकत क्या देनी हरकत है पूरी, देंगे। ठीक है। जी ये तो था अमरे जी मालूम। तरीका समझ में आ गया। जी हो अब तर्जुमा कैसे होगा? ले जी अंसूर, चाहिए कि मदद करे वो एक मर्द। पहले गर्दान, ले अंसूर, ले अंसूरा, ले अंसुर अंसूर, ले तंसूर, ले अंसुर तंसूरा, ले अंसुर अंसूरना, अंसुरना अंसुर उनसुर, उनसुरा, अंसुरा उनसुरून, अंसुरी दुई, उनसुरा, अंसुर उनसुरना, ले अंसुर अंसूर, ले नंसूर। मंसूर। क्योंकि 6 गायब के शुरू के और 2 आखिर के मुतकल्लिम के सीगे लाम से बनते हैं, अम्र में लाम कहा जाता है। 6 हाजिर वाले, उसका तरीका अली है। ले यजरिब, ले यजरिबा, ले यजरिबू, ले तजरिब, ले तजरिबा, ले यजरिबना। फिर इजरिब इजरिब, इजरेबा इजरिबा, इजरिबू, इजरेबू इजरिबी, इजरेबी इजरिबा, इजरेबा इजरिबना, ले इजरेबना ले अजरिब, इजरिब ले ले नजरिब। नजरिब। 14 सीगे। तर्जुमा, ले यजरिब, चाहिए कि मारे वो एक मर्द। अम्र कैसे कहते हैं? जरूरी करना। भाई देखिए, असल में अम्र का मतलब क्या है? हुक्म है ना। हुक्म लगाना। लेकिन आप अगर रियल में दिया देखें तो हुक्म, हुक्म जो कहा जाएगा अम्र, वो सामने वाले को ही तो दिया जाता है। हुक्म किसे देते हैं? सामने वाले को। जी गायब वाले को हुक्म थोड़े दिया जाता है, गायब वाले के लिए तो जरूरी किया जाता है। कायदतन अगर देखा जाए तो हुक्म सामने वाले को ही दिया जाता है, लेकिन सबके सबको अम्र इसलिए ऐसे कह देते हैं, वरना असल में आना में अगर देखा जाए तो अम्र 6 ही सीगे होने चाहिए, हाजिर हाजिर के ही। हुक्म हमेशा सामने वाले को दिया जाता है, गायब वाले को और अपने आप को थोड़े हुक्म देता है। गायब वाले को और अपने आप के ऊपर तो इल्जाम ही करता है, जरूरी करता है इंसान। चाहिए कि मारे वो एक मर्द, उसे पढ़ना चाहिए, उसे मारना चाहिए, उसे समझना चाहिए। तो हुक्म थोड़ी दे रहा हूं मैं, लाजिम कर रहा हूं उसके लिए, मुझे पढ़ना चाहिए। मैं अपने आप को हुक्म थोड़ी दे रहा हूं, इंसान अपने आप को हुक्म थोड़ी दे सकता है। मुझे पढ़ना चाहिए, नहीं जरूरी कर सकता हूँ अपने ऊपर। तो ले यजरिब, चाहिए कि मारे वो एक मर्द। ले यजरिबा, चाहिए कि मारे वो 2 मारे मर्द। वो ले दो मर्द। यजरिबू, चाहिए कि चाहे मारे कि वो सब मारे वो मर्द। सब मर्द। ले हमारे वो तजरिब, मार चाहिए है, कि वो सब मार, ले एक तजरिब, मारी, चाहिए मार कि तो मारे वो एक वो मर्द। एक औरत। चाहिए कि मारे वो 2 औरतें। ले तजरिबा, ले वो दो यजरिबना, चाहिए कि औरतें। मारे वो सब औरतें। वो सब औरतें। इजरिब, मार तू एक तू मर्द। मार इजरिबा, मारो तुम 2 मर्द। इजरिबू, तुम दो मारो तुम मर्द। सब मर्द। इजरिबी, तुम मार मार तू एक औरत, मार तू तू एक औरत एक औरत। मार। इजरिबा, तुम 2 औरतें मारो। इजरिबना, तुम सब औरतें मारो। ले अजरिब, मुझे चाहिए कि मैं मारूं, चाहे चाहिए मैं कि मैं मर्द हूं चाहे मारूं। औरत। ले नजरिब, चाहिए कि मारे हम, चाहे मर्द चाहे हम औरत, सब चाहे मर्द। 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। ओके। ये तो था अम्र मालूम। क्या था ये? बोलिए। अम्र अम्र मालूम। 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 14 सीगे हैं, जिसमें से 8 को अम्र पे लाम कहा जाता है और 6 को अम्र पे हाजिर 6 कहा को जाता है। अम्र समझ पे में आया? सीगे। जी। जी हाँ जी। अब नून ताकीद सकीला खफीफा याद है? नून जी हाँ ताकीद सकीला खफीफा याद है? नहीं? जी हमारे मालूम, हाँ, मालूम। वो इसमें भी आता है, वो इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, मगर कैसे? वही तरीका है, अम्र नून खफीफा सकीला का वही तरीका है जो वहां सिखा दिया आपको। बस ये है कि ले यजरिब हो जाएगा, ले
यज़रिबन्ना क्या हो जाएगा? लियज़रिबन वहां पे क्या था? लयंसुरन्ना, लाम ताकीद था वो, लेकिन ये लाम अम्र है। लियज़रिबन्ना, अब गर्दान करना, वहां ले था या ला कर दो, वहां ला था या कर दो। लियज़रिबन्ना, लियज़रिबान, लियज़रिबुन्ना, लितज़रिबन्ना, लितज़रिबान, लियज़रिबनान ने जी लियज़रिबन्ना अगर अम्र नहीं है, जी अम्र नहीं, अम्र नहीं कहा, ये तो लियज़रिबन अम्र मालूम बा नून सकीला, नून सकीला के साथ अम्र की गर्दान। लियज़रिबन्ना, लियज़रिबाने, लियज़रिबुन्ना, लितज़रिबन्ना, लितज़रिबाने, लियज़रिबनान। अब हाजिर इज़रिबन्ना, इज़रिबान, इज़रिबुन्ना, इज़रिबिन्ना। अब लाम नहीं लगेगा, कभी आप सोचिए लाम ताकीद अलग था, नून सकीला के साथ था लाम ताकीद, यहाँ अम्र है नून सकीला के साथ, ठीक है। जी सेम तरीका है बिल्कुल, बस ये है कि गायब के जो सीखे हैं ले के साथ, लियज़रिबन्ना, लियज़रिबाने, लियज़रिबुन्ना, लितज़रिबन्ना, लितज़रिबाने, लियज़रिबनान, ठीक है। और हाजिर का सीगा क्या था? इज़रिब था ना, इज़रिबन्ना, इज़रिबाने, इज़रिबुन्ना, इज़रिबिन्ना, इज़रिबाने, इज़रिबनान, लिअज़रिबन्ना, लिअज़रिबन। तरीका है। खफीफा पे आए तो वही तरीका रहेगा, खफीफा पे आए तो नहीं लियज़रिबन, लियज़रिबन, लियज़रिबान, लियज़रिबुन, लितज़रिबान, लितज़रिबन इज़रिबुन, इज़रिबिन, लिअज़रिबन, लिनज़रिबन। जी क्या समझ करके प्रैक्टिस करके देखना, वहां पे 8 सीगे खफीफा के याद हैं? जी वहां पे याद नहीं किया था तुमने? नून खफीफा की गर्दान याद नहीं की थी? तो बस जी आगा। वही 8 सीगे, 8 सीगों में से जो अम्र में लाम वाले हैं वो लाम के साथ, जो हाजिर के हैं वो वैसे ही रहेंगे। करके लिख के लाना, कल चेक करूंगा, देखो किसका समझे, ठीक है। वही तरीका यहाँ भी होगा, समझ में आ रहा है नहीं? जी भाई हमरे मालूम पूरी गर्दान लिख लेना, ले अजरिब, ले अजरिबा, ले अजरिबू, ले तजरिब, ले तजरिबा, ले अजरिबना, इजरिब, इजरिबा, इजरिबू, इजरिबी, इजरिबा, इजरिबना, ले अजरिब, ले नजरिब। पूरी लिखने के बाद आगे नून सकीला 14 के 14 में बढ़ा देना, वही तरीका है जो वहां था। ले अजरिब हो जाएगा, ले अजरिबन्ना, ले अजरिबान, ले अजरिबुन्ना, वही सेम तरीका है। मैंने नून सकीला को लिखवाया है ना, बस वहां पे लामे ताकीद था, वो हटा, वो नहीं लगाना यहाँ, बस आखिर के आखिर में नून सकीला लगा देना है सब जगह, वही तरीके से जैसे वहां बताया था। माना में ताकीद हो जाएगी। अभी क्या था? ले अजरिब चाहिए कि मारे वो एक मार, अब हो जाएगा चाहिए कि जरूर मारे वो एक मार। जी आया? जी नून खफीफा के लिए आप वाली नून की गर्दान खफीफा के 8 सीधे लिख लेना, तस्निया के हिसाब से। हाँ पहले तो लाम के साथ लिख लेना, जी वही मुदारे वाली क्या थी? ले अजरिबन, ले अजरिबन, ला था वहां पे, जी ला ये गायब का सीगा था, लतज़रिबन, मुअन्नस गायब का, ये मुदक्कर हाजिर का था, मुदक्कर का लतज़रिबन, ये जमा गायब का, जमा हाजिर का लतज़रिब, लतज़रिबन, लतज़रिबन, लतज़रिबुन, लतज़रिबुन, लतज़रिबिन, यही था जी बिन, लअज़रिबन ला नजरिबन हो गए। देखना 8 सीगे, यजरिबन ला यजरिबन ला तजरिबन ला तजरिबन तजरिब हो गए 8 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें से क्या करना है? अमर क्या बनता है इसका? ये हो जाएगा ले यजरिबन ले यज़रिबन, ले यज़रिबन, ले यज़रिबुन, ले यज़रिबुन, ले तजरिबन तज़रिबन, ले तजरिबन अब बताइए ले तज़रिबन, ले तजरिबन हाजिर का सीगा है ना, ले इजरिबन ले लाम इजरिब कहाँ से आ गया? इजरे हाजिर में लाम कहाँ आता है? इजरिबन इजरिब इज़रिबुन,
इजरेबिन 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 ले अजरेबान लेनिजरेबिन Nilazreban. ले नजरेबन है आसान हो गया नहीं जी आगा। अगर नीचे का नहीं दिख रहा ले अजरेबन ले नजरेबन ठीक है ये 8 चीजें लिख के बस लाम ताकीद नाम मफ्तूहा होता है उसे हटा दीजिए मुदार अम्र की गर्दान लिख लीजिएगा अम्र की गर्दान भी इन्हीं सीगों के आखिर में नून से खफीफा लगा दीजिएगा इन्हीं सीगों में पहला सीगा क्योंकि वो नून खफीफा 8 ही सीगे आते हैं ना पहला तीसरा चौथा सातवां जी नौवां 10वां 13वां 14वां ये वाले सीगे आते हैं खफीफा के बस आप देख लेना अम्र बिलाम और अम्र हाजिर ये 3 सीगे अम्र हाजिर के हैं नहीं जी 7वां 9वां 10वां हाजिर में ही आता है ना तो इसको हमजे के साथ बनाना बाकी गुलाम के साथ बनाना ठीक है जी आसान है बहुत आसान जी मिटा दूं अरे खुद से लिखना है तो मैंने आपको ऐसे लिख दिया खुद से लिखना है आपको आसान बात है तभी तो पता लगेगा जहन पे बोझ थोड़ा सा बोझ डले तो तभी याद भी होगा बहरहाल नून ताकीद सकीला खफीफा याद है उसे एक तरफ लिख लेना और इधर अम्र मालूम की गर्दान लिख लेना बस आखिर में नून बढ़ाना है लाम वाम कुछ नहीं बढ़ाना बस समझ में आ रहा है आगा। जी जी ये तो था अम्रे मालूम अब होता है अम्रे मजबूर ये उससे भी आसान है ये अम्रे मालूम से भी आसान है क्यों आसान है क्योंकि अम्रे मालूम में गायब के अलग बनने हैं हाजिर के अलग बनने हैं इसमें कुछ नहीं करना मुजारे मजबूर के शुरू में लाम अम्रे मकसूर और आखिर को जर्म 14 के 14 लाम से बनेंगे 14 के 14 अम्रे मजबूर बनाने का फायदा अम्रे मजबूर लिख रहे हैं जी अम्रे मजबूर मुजारे मजबूर से याद है ना मालूम से मालूम मजबूर से मजबूर बनता है जी मुजारे मजबूर के 14 सीगों में क्या करना है नंबर एक शुरू में लाम लामे अम्र ठीक है बढ़ा देंगे ठीक है क्या था मुजारे मजहूल युनसरो ठीक है युनसरो था नहीं जी लामे अम्र ले आइए ले युनसरो दूसरा कदम अभी गलत है वो
جی آخر کو جذب دے دیں. آخر کو جزم دیں گے. جزم کا مطلب یاد رکھنا، میں بار بار اس لیے دہرایا جا رہا ہوں. جزم کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ضمہ ہے اسے ساکن کر دیں گے اگر حرف علت نہیں ہے، اور اگر حرف علت ہے تو خود حرف علت گر جائے گا. دوسرا نون اعرابی جہاں جائے وہ گر جائے گا. اب ہو جائے گا ینصرو. جی ینصرو سے کیا ہوا؟ پہلا قدم لینصرو. لینصرو. دوسرا قدم آخر کو جازم لینصر. لے ینصر. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا نہیں؟ 14 کے 14 نقطہ میں لکھ دوں آپ کو. نقطہ امر مجہول فقط لام سے بنتا ہے. ٹھیک ہے، 14 کے 14 صیغے لام سے ہی بنتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اب ترجمہ. یونصرو کیا تھا؟ مدد کیا جاتا ہے، کیا جائے گا، ہو جائے گا یونصر. چاہیے کہ مدد کیا جائے وہ ایک مرد، چاہیے کہ مدد کی جائے وہ ایک عورت یا دو عورت. چاہیے کہ مدد کیا جائے حاضر کا صیغہ تو ایک مرد. چاہیے کہ مدد کی جائے تو ایک عورت. چاہیے کہ مدد کیا جاؤں میں، جی یعنی میری مدد کی جانی چاہیے. سمجھ میں آیا؟ جی تو سمجھ میں آیا نہیں؟ جی آقا. جی یہ امر مجہول کا کل لکھ کے لائیں گے. امر معلوم کے بھی گردانے اور امر مجہول کی بھی ترجمے کے ساتھ صیغوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور قاعدہ یاد ہونا چاہیے. ثقیلہ خفیفہ بھی دھیان سے دیکھ کے ٹھیک ہے. اس میں بھی ثقیلہ خفیلہ یہاں بھی آئے گا خفیفہ. لیونصرن ہو جائے گا، لیونصرن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہی تاکید آ جائے گی اس میں. وصلی اللہ علی. ایک منٹ. اللہم